Unacademy. Let's crack it. सोम्या जी बताइए कुछ अपने बारे में एक्सप्लेन करें. Yes, sir. Good evening, sir. My name is Soumya Gupta. I was born and brought up in Bahadurgarh, district Jhajjar, from the state of Haryana. I did my 10th and 12th class from Bal Bharati School, Bahadurgarh itself. I did my 10th in 2014 and 12th in 2016. After which, I joined the BLLB course from Vivekananda Institute of Professional Studies. That I completed in the year 2021. After which I pursued LLM from Dr. Ram Manohar Lohia, National Law University, Lucknow, and which I completed in the year 2022. Currently, I'm preparing for the Judicial Service examination, and throughout this journey, I'm lucky enough to be here in front of you, in front of the Honorable Board for the interview of UP Civil Judge examinations. आपने LLM कौन से ईयर में कंप्लीट किया Sir, 22 में. और जो आपने डेजिटेशन सबमिट किया था वो किस टॉपिक पे किया था? So my dissertation was on topic of marital rape, the analysis of the position of laws related to marital rape in India. So do you believe that marital rape should be enabled in India as an offense? So considering the education and literacy which is growing and the rights of women and the autonomy and individuality we are giving to each and every individual, I believe that marital rape should be considered as an offense. However, some of the precautions and the balance has to be maintained so that the rights of husband and wife are equally maintained. क्या प्रिकॉशन रखोगे आप? बंद कमरे के अंदर दो मेल फीमेल के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, क्या इंटरकोर्स हो रहा है, फोर्सफुली है कि वॉलंटरी है, क्या प्रिकॉशन रखोगे आप? So the main concern when we talk about criminalizing marital rape is that the wives may use it against the husband as a tool to blackmail them for some or the other reason. That issue has always been there when we talk about Domestic Violence Act or other issues. So I think the precaution that we can maintain is that if a complaint is filed in case of marital rape offenses, then there should be a preliminary inquiry considering what are the relations between the husband and wife. Straight away arrest should not be made. And there should be a penal provision for punishing the female also if they are making false complaints. The burden of proof shall not be very strict, but shall be considered upon protecting the rights of the female and husbands as well. एविडेंस लॉ को कैसे इस्तेमाल कर पाओगे? अगर मैरिटल रेप को आप अपराध बना देते हो तो एविडेंस लॉ को कैसे इस्तेमाल करोगे? भाई विक्टिम ही है वहां पे तो आई विटनेस कह दो, सोल विटनेस कह दो, विक्टिम ही है. अदर पर्सन इज द एक्यूज. तो विक्टिम के सोल टेस्टिमनी के आधार पर आप हस्बैंड को पनिश कर दोगे. और अदर एविडेंस क्या हो सकता है? So other evidence can be the relationship that is existing between the husband and wife. So for there are provision in the Evidence Act which talk about the relationship about husband and wife, where we take opinion of the people who ordinarily know about what kind of relationship they were sharing. So if the family members are seeing that they were having a cordial relationship,
they were living happily. The parents of the wife or the parents of the husband can be a testimony about how their relationship was. If their relationship was stringent already and they were like not on a amicable terms with each other, then we can say that there are chances that the husband might have forced the wife to have sexual intercourse with her. अभी करंट में सिनेरियो क्या है? हस्बैंड वाइफ के साथ अगर जबरदस्ती करता है तो करंट सिनेरियो क्या है? So the current scenario is that the exception 2 to section 375 says that if a wife is below the age of 15 years, then it is not an offense. There was a 15 or case. 18? 15 So or there 18? was, yes, sir. There was a case, Independent Thought versus Union of India, which raised the age bar to 18 years. But in the statute books, it is still 15 years. So if a husband commits sexual intercourse with wife, if the wife is below the age of 18, Yes, and sir. if that thing is covered under 375 definition, then he may be punished for rape. Yes, sir. Okay, he may be punished for rape. Yes. Do you believe that a single adult male can commit a rape against a single adult female? Yes, sir. आपके सामने एक मैटर आया, बीइंग ए जुडिशियल ऑफिसर, आपके सामने एक मैटर आया, दो उसको आप आगे जाके सेशन को कमिट करेंगे। एक दुबला पतला इंसान जो फिजिकली इतना डेवलप ही नहीं लग रहा है, Yes, उसका sir. वेट होगा 38 kg 40 kg। एक फीमेल जो थोड़ा सा हड्डी कड्डी हेल्थी लग रही है, उसका वेट होगा 65 प्लस। उसका ये कहना है कि उस दुबले पतले इंसान ने उसके साथ फोर्सफुली रेप किया। इस सिनेरियो को आप प्राइमा फेसाई किस एंगल से ऑब्जर्व करेंगे? So, prima facie, if we look into the Evidence Act, there is a presumption which says that if a prosecutor is saying that she did not consent to the sexual intercourse, there has to be a presumption that she did not consent to it. And there was a forceful intercourse. Then, so we can see into the medical evidences which are provided, if there can be, if we can prove resistance or not. However, resistance is not the sole testimony that the sexual intercourse was voluntary or not. And I believe that having an idea that the physique of a man was weak and the physique of women was strong is a presumption that the female is making false accusations. We have to see the whole fact and circumstances of the case to come to a conclusion. But prima facie, according to Evidence Act, presumption will lie in favor of the female. ओके, मतलब उस मेल के फेवर में आप कोई लॉ की प्रिजम्पशन नहीं कर सकते। Sir, the law does not provide for presumption in favor of the man. Law does not provide any I- presumption. Sir, I believe so. As far as I can remember, there isn't a presumption that favors man. अगर महिला जो है वो सर्कमस्टेंसेस के अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर फैक्ट कहती है, घर बंद था, घर अंदर से लॉक था, अब वो महिला कह रही है कि वो आदमी जो है वो 26 फीट की दीवार चढ़ के घर के अंदर एंटर करके आया, तो आपको नहीं लगता कि ये पर्टिकुलर फैक्ट के अकॉर्डिंग प्रिजम्पशन जो है उस मेल पर्सन के फेवर में चली जाएगी और महिला के ऊपर बर्डन रहेगा ये प्रूव करे कि 26 फीट की एकदम फ्लैट दीवार को कोई कैसे चढ़ सकता है? Yes, sir. Sir, then now it is another fact that you are introducing in the situation. So if there is some intervening. I'm just telling you said ना कि कोई प्रिजम्पशन उसके फेवर का है ही नहीं लॉ में। मैं तो सिर्फ उस बात पे एक आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, आप बताएं, आप क्लैरिफाई करें। Yes, sir. Sir, if there is like prima facie, the burden would be on the prosecution that the offense has been committed. So if there is a circumstance like you have illustrated that there is a huge flat wall which is humanly impossible to be climbed upon, then firstly the female has to establish her case that how the man has entered the house, and then only further presumptions and evidences can be taken. चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में सुना है आपने? Yes, sir. कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं इसके प्रोविजन? So, burden of proof is from 101 till 114. 114 और 114A? 14A, 114A. चलिए, जब कोई क्रिमिनल केस का कॉग्निजेंस लिया जाता है, नंबर 1, जब क्रिमिनल केस में चार्ज फ्रेमिंग किया जाता है, नंबर 2, और जब क्रिमिनल केस के अंदर फाइनल कन्विक्शन होता है, नंबर 3, क्या इन तीनों स्टेज पर बर्डन ऑफ प्रूफ का जो स्टैंडर्ड है वो सेम रहता है
या अलग अलग रहता है? प्लीज एक्सप्लेन. So the primary burden of proof in criminal case would be on the prosecution, which they have to discharge so that the case can move forward. So at the place of cognizance, the burden of proof will be always on the prosecution itself. However, the onus of proof of proving a fact without which may lead that particular side to lose the case is upon the person who is alleging that fact. मैं So मेरा basic, सवाल वापस दोहरा देता हूं. मेरा क्वेश्चन Yes. ये है, प्रसंज्ञान लेते समय, आपका मीडियम इंग्लिश है राइट? yes sir, English. कॉग्निजेंस लेते समय, चार्ज फ्रेमिंग करते समय और कन्विक्शन देते समय, क्या तीनों समय स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का जो क्राइटेरिया है वो सेम रहता है क्या? I'm sorry sir, I'm not able to answer this question. चलिए सर प्लीज. सौम्या, Good evening sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं. Yes sir. आपने एकदम यूपी से किया है, इसीलिए आपका इंटरेस्ट यूपी की तरफ ज्यादा है. Yes मैं ये sir. क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ हरियाणा का है, कंपेरेटिवली यूपी बेटर है, जैसा मैं जानता हूँ कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी की तुलना में बेटर है. कोर्ट की कहते हैं स्टेटस ठीक है. वहाँ के कोर्ट में जो सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ कंपेरेटिवली यूपी के. तो आप किस वजह से, क्या इंटरेस्ट आप, मतलब किस वजह से आपने यूपी को प्रेफर किया? मैं जानना चाहता हूँ. हरियाणा को बजाय यूपी को प्रेफर किया आपने, क्यों? Sir, my aim is to become a judicial officer. So for Yes. me, the state is not a matter of consideration as of now. I'm looking for the opportunity and the state which can offer me the opportunity first. अच्छा अच्छा, मतलब कोई अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ ये है कि जुडिशियल सर्विसेज आप ज्वाइन करना चाहती, इसलिए आपने यूपी को प्रेफर किया है. आपने हरियाणा में एक बार अटेम्प्ट किया है मुंसिफ का कि नहीं अभी तक? Sir, Haryana, I appeared last year and I gave the interview as well. अच्छा, सॉरी 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 सॉरी. हिंदू लॉ में डाइवोर्स किस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है? डाइवोर्स Sorry, sir. हिंदू लॉ में डाइवोर्स किस सेक्शन में बताया गया है? The section 13 13 में of the Hindu Marriage Act. इसकी डेफिनेशन क्या है डाइवोर्स की? Sir, the definition is not provided, but the grounds of divorce have been provided. कितने ग्राउंड्स हैं? Sir, the 7 grounds. 7 ग्राउंड. जुडिशियल सेपरेशन क्या डाइवोर्स का एक ग्राउंड है, और है तो कब है? Yes, sir. So the 7 grounds which are mentioned are for both male and female, and they are basically on the Paul theory. The judicial separation is also a ground for divorce if there has been no resumption of cohabitation for 1 year or upward. After 1 year. Yes, sir. म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स किस सेक्शन Yes. में प्रोवाइडेड है? Section 13B. 13B. B. उसके लिए क्या कंडीशन है? So the condition is that the husband and wife have not been able to live together for 1 year or upward. Then they have to present a joint application petition before the court. For that would be called the first motion. And then if there has been no resumption of cohabitation for after 6 months and maximum 18 months, in which 6 to 18 months they have to present the second petition so that the court can proceed to grant the divorce upon their petition. मैरिज होने के, जैसे मान लीजिए किसी कपल की मैरिज जो हुई जनवरी में मैरिज हो रही है, Yes, तो sir. वो कितने दिन के अंदर कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर कहते हैं डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है? So the general rule is that they have to wait for 1 year. So after next January, that is the minimum time that in next year's January, they can present the application. But there is any exception? Yes, sir. Sir, under section 14, it says that if there is exceptional hardship or exceptional depravity, then the petition can be presented before 1 year and the court has to assess the circumstances. प्रेसिडेंसी टाउन्स जानते हैं आप? प्रेसिडेंसी टाउन्स, लीगल हिस्ट्री प्रेसिडेंसी टाउन्स पढ़ा होगा आपने. Yes, sir.
कौन कौन से प्रेसिडेंसी टाउन थे? So I remember the definition of presidency towns, but sir, Jammu and Kashmir was a presidency town. Kurg was a presidency town. चलिए, बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जानते हैं आप? नाम बता सकते हैं बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? No, sir, sorry, नहीं sir. मालूम? यूनियन लॉ मिनिस्टर का नाम आप जानते हैं? यूनियन लॉ मिनिस्टर? Sir, I'm not able to recall. I have read about it, but थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, sorry, sir, sorry, थैंक sir. यू, थैंक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू, थैंक यू। यस रत्नप्रिया जी। Soumya, Yes. under TPA, Transfer Yes. Property Act, there's this concept of a rule against perpetuity. Yes, ma'am. Can you explain it? Ma'am, the rule against perpetuity states that a person can that the property cannot be held in perpetuity by a single person and it has to be transferred. So it provides that if we make a transfer for an unborn person, then it has to go through a life in trust of some person, and eventually that property has to vest completely in that unborn child, so that it can be disposed of according to his will. And Okay. Also, what are the types of mortgages? the type of mortgages are simple mortgage, conditional mortgage, usufructory mortgage, English mortgage, mortgage by deposit of title deeds, and anomalous mortgage. Okay. And also equitable? Yeah, equitable is the deposit by title deeds. Okay, correct. Now, what's the difference between Council of Ministers and Cabinet Ministers? There are two terms under the Indian Constitution. Yes, So what's ma'am. the difference between these two? Ma'am, the Council of Minister, cabinet ministers are those who are holding a particular portfolio with them, a department with them. Okay. Ma'am, I'm not very sure about Council It's of okay. Ministers. Do we read about it? Yes, No ma'am, sure. I'll read about it. Okay. Last question. What do you mean by anticipatory breach of contract? Anticipatory breach of contract is when the defaulting parties say that they will not be able to perform the contract before the actual date of performance comes into existence. Is there any particular section related to it? Ma'am, Section 39 of the Indian Contract Act. Okay. Just last question. Yes, Coming ma'am. back to marital rape. So, are there any landmark cases because you did your post graduation in the year 2022, right? Yes, yes. So there Ma'am. were two landmark cases. Yes, ma'am. Two marital rapes. Can you name those cases? Ma'am, one was of Delhi High Court, the RIT Foundation versus Union of India, and second was of the Karnataka High Court, which is Harikesh. Yes, ma'am. Harikesh Havu versus State of Karnataka. Okay, good. Thank you, That's ma'am. all, sir. Thank you, ma'am. So Soumya ji, we have done with your mock. Yes, ma'am. First Thank of all, how was your experience? पहले हमें ये बताएं. So it was fine. I think I have to read upon my dissertation topic more. Exactly. And I'm telling you कि ये जो आपका मैरिटल रेप ऐसा टॉपिक है ना, अगर आपने इसके प्लीज जो भी प्रोस कॉन्स प्लस माइनस अप डाउन सारे पॉइंट अगर आपने अच्छे से पढ़ के चले गए तो ये एक पॉइंट आपके इंटरव्यू को सक्सेसफुलनेस की ओर डाइवर्ट कर सकता है. Yes, sir. क्योंकि वो मुद्दा जिसके बारे में थोड़ा लोग क्या करते हैं, बातचीत नहीं करते, वहां पर हर एस्पेक्ट से आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेटिव करना चाहिए, ना केवल फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप फीमेल है तो ऐसा नहीं फीमेल का अप्रोच दिख जाए वहां Yes, पे, yes, yes. है ना, न्यूट्रल अप्रोच दिखना चाहिए और उस पर्सपेक्टिव में अपना पॉइंट एक स्ट्रांगली रखें. Okay. और मान लीजिए वहां पे 5 जजेस बैठे और आप 3 जजेस को भी आप इंप्रेस कर पाते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल मैरिटल रेप को प्यूनिटिव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या एक्सेप्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो उस केस में यस ये आपका चीज बहुत अच्छा. और इस केस में मैं आपको स्पेशली सजेस्ट भी करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपने डेजिटेशन सबमिट किया, आपका एलएलएम का सब्जेक्ट कुछ और था. क्या था आपका एलएलएम का सब्जेक्ट? Sir, constitutional law. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही था.
Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, दो सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और क्रिमिनोलॉजी। मैरिटल हाँ जी। रेप को जनरली क्रिमिनोलॉजी में कनेक्ट, Criminology. कोई बात Yes, नहीं, sir. अपन इसको कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर देते हैं, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी. अगर आप इसको करोगे तो हो सकता है संवैधानिक अधिकार का हनन होगा कि नहीं होगा, कि अल्टीमेटली लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट। Yes, sir. My main chapter was about constitutional violation of rights. आप इसको इस पॉइंट से जरूर कनेक्ट करना। कैसे Okay. नो डाउट सर कि हस्बैंड जो है अपने आप में कहीं न कहीं, हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक पायस रिलेशन होता है, और ऐसे केस के अंदर एक बिलीफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सब जिस तरीके से आज के सिनेरियो में हम जो है लॉ का मिसयूज होते हुए देखते हैं, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि मैरिटल रेप अगर आता है तो इसका मिसयूज होगा। लेकिन सर मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि अगर किसी कानून का मिसयूज हो सकता है, सिर्फ इस ग्राउंड पे उस कानून को नहीं लाया जाए, ये कहां तक जस्टिफिएबल हो पाएगा? Yes. गॉट इट? इस बात को थोड़ा एकदम स्ट्रांगली, एकदम उसी आत्मविश्वास के साथ कहिएगा, इट विल चेंज द सिनेरियो, है ना? और आपका पूरा इंटरव्यू इसके और ड्राइव हो जाएगा। तो आप एलएलएम के अंदर ये जरूर बताना कि सर डू आई हैव चूज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉर माय एलएलएम एंड आई हैव सबमिटेड माय डिसर्टेशन ऑन द टॉपिक ऑफ मैरिटल रेप। मतलब स्पेसिफिकली हाईलाइट कराना कि भैया मैरिटल रेप से पूछो मेरे को, ऐसा हमको फील करवाना, ठीक है? एंड दे विल आस्क यू, क्योंकि बर्निंग टॉपिक है यहाँ पे। और साथ ही साथ में कुछ चीजें जहां पर आपको थोड़ा और वर्कआउट करना चाहिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर बात आपसे आई थी कि आपने 10th और 12th के हर एक के आप ईयर बताते जा रहे थे, पूरी क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन कर रहे थे। That's not required, है ना? Simply mention that you have done your secondary examination, senior secondary examination. वैसे do that not matter, क्योंकि आप लोगों का एलिजिबिलिटी तो सिमिलर ही है। हमें फोकस करना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अचीवमेंट है तो उसके ऊपर आपको जरूर बात करना चाहिए, ठीक है? ओके, नाउ फर्दर यहाँ पर आपके जो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स के पॉइंट बताए, दैट्स गुड, आपका वहां पे कमांड मुझे काफी अच्छा लगा, है ना? बस एक चीज है, आपका रिकॉलिंग का एक तरीका है, सर प्लीज गिव मी सम टाइम, देन यू विल क्लोज योर आईज एंड यू विल रिकॉल। गलत नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। मैं आपको अपनी टेक्निक बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ। जब किसी इंसान से आंख मिला के मेरे को कुछ सोचना होता है, तो मैं उसके फेस पर किसी ऐसी चीज पर फोकस करता हूँ जो स्टेबल है। अब सपोज को मेरे सामने जो मेंबर बैठा है उसने चश्मा पहन रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी आंखों में तो देख रहा हूँ, बट आंखों में नहीं, एक्चुअली चश्मे के बीच में देख के सोच रहा हूँ। क्योंकि अगर हम किसी स्टेबल थिंग को देखते हैं ना, तो हम सोच सकते हैं। अगर किसी हिलती डुलती चीज को देखते तो हमारा सोचने का मामला थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। उनके बालों पे फोकस कर लो, उनके किसी चीज पे फोकस कर लो, उनकी टाई पे फोकस करो, उनको लगे भाई हमारी तरफ देख रहे हैं, और एक्चुअल में आप उसको सोच रहे होते हो, है ना? तो मतलब इस तरीके में कुछ गलत नहीं है, राइट धर्मराज सर? मतलब आंखें बंद करके रिकॉल करना नॉट रॉन्ग, बट समवेयर जो है हम इस चीज के अंदर क्या कर सकते हैं, थोड़ा दूसरा तरीका अप्लाई है जो कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ना बोलते बोलते, मतलब आंसर देते देते थोड़े से आप पर्सनल लेवल पे चले गए थे कि सर आदमियों को तो प्रोटेक्ट करने वाले कोई प्रिजम्पशन है ही नहीं। ये भाव आपने अपने एक स्टेटमेंट में दिया था। मीनवाइल आंसरिंग, अब बचो उससे, अवॉइड करो उसको, ठीक है? हमें सिर्फ वही बात करनी है जो हमारा लॉ कहता है। कई बार सच्चाई भी बयान नहीं करनी पड़ती। एक मैंने आपसे एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल चीज पूछी थी कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है कि भाई कितना आपको लेवल चाहिए। तो देखो कॉग्निजेंस में कोई एविडेंस तो अपन देखते हैं नहीं, प्राइमा फेसाई, तो वहां पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बहुत कम होता है, प्राइमा फेसाई आपको चाहिए होता है। फिर चार्ज फ्रेमिंग के दौरान ग्रेव स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होना चाहिए। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देखो तीनों काम कौन करता है? मजिस्ट्रेट ही कर रहा है, क्रिमिनल कोर्ट ही कर रहा है, कॉग्निजेंस ही मजिस्ट्रेट ले रहा है, उसके बाद में जो चार्ज फ्रेमिंग है वो भी मजिस्ट्रेट कर रहा है, और उसके बाद कन्विक्शन भी मजिस्ट्रेट दे रहा है। तो तीनों को एक मापदंड से तो कैसे जज करोगे? एक का आंसर आपको पता है, कन्विक्शन कब करेगा? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सुना है आपने? यस सर। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव कर देता है तो उस स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में कन्विक्शन हो पाएगा या एक्विटल हो पाएगा। फिर पीछे बचा चार्ज फ्रेमिंग, वहां पे हमको चाहिए ग्रेव स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। वहां पे आपको पता है ना, तो मतलब बेसिकली आप जब ट्रायल पढ़ोगे तो वो देखता है कि वाकई में केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है? तो वहां पे चाहिए ग्रेव। तो प्राइमा फेसाई और लेसर चाहिए होता है हमको कॉग्निजेंस की स्टेज पे, ग्रेव चाहिए होता है हमको चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे, और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चाहिए होता है कन्विक्शन की स्टेज पे। और ये टॉपिक, ऐसी टॉपिक में गलतियां मत करो, यूनियन लॉ मिनिस्टर का नाम नहीं बता पा रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल। अर्जुन राम जी मेघवाल अभी मुद्दा हुआ था ना, उनको फिर पुराने वाले को हटाया गया, फिर इनको लाया गया, किरण रिजिजू जी थे, इनका मामला थोड़ा विवादित टाइप का भी हुआ तो हटाया दिया उनको। फिर हमने किसको लेके आ गए? अर्जुन जी मेघवाल को लेकर आ गए। यूनियन मिनिस्टर और कैबिनेट में आप कंफ्यूज हो रहे हो,
अरे भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलग अलग पार्ट होते हैं, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट, डेप्यूटी मिनिस्टर वगैरह। तो उनमें से एक कैबिनेट होता है। कैबिनेट में क्या सीनियर पोस्ट के होते हैं, डिफेंस वगैरह के मामले, है ना, होम मिनिस्ट्री के मामले, इन सबको क्या किया जाता है, कैबिनेट के अंदर रखा जाता है। तो थोड़ा इन चीजों के अंदर हमें अच्छा रहना। बाकी आपका जो वे ऑफ आंसरिंग है ना, आई अप्रिशिएट दैट। मतलब Thank you, sir. इन माय ओपिनियन, हो सकता है बोर्ड की दूसरी ओपिनियन हो, आई थिंक यू आर अ मटेरियल फॉर जुडिशरी। Thank you so much, sir. यस, बस ये है कि बढ़िया से मेडिटेट करें अपन प्रोविजंस वगैरह को, और 2-3 टॉपिक को अपना अच्छा सा हथियार बनाएं, और इसी तरीके से जाना, जैसे आप हो ना, सहज हो ना, उसी सहजता के साथ जाइए। बस चेंजेस जो मैंने कुछ सजेस्ट किए उन पे थोड़ा वर्कआउट जरूर कीजिएगा। सर, मैम, एनीथिंग एल्स यू वांट टू? ये कॉन्फिडेंट बहुत है, और ये अच्छी बात है कि बहुत Yeah. कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंटली इन्होंने जवाब भी दिया है। थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों को, मुझे जो लगता है छोटी छोटी चीजों को ओवरलुक कर जाती हैं, छोटी चीजों को भी देखना जरूरी है, जिससे Okay. थोड़ा सा इनके आंसर में थोड़ा सा चार चांद लग जाएगा। मेरी समझ से इनको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी इनके पास टाइम भी है, 10-12 दिन का संभवतः समय भी है इनके पास इंटरव्यू में, अगर इस चाहेंगी तो छोटी छोटी, और बेसिकली जैसे अगर बेयर एक्ट्स ही अगर पढ़ लेगी तो भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन Yes. इलेबोरेटली थोड़ा सा पढ़ने या बेयर एक्ट से ही अगर क्लियर कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Okay, sir. थैंक यू। Thank you so much, sir. यू वांट टू ऐड, रत्नप्रिया मैम? We wish you all the best. Thank बाकी you, आपका ma'am. इंटरव्यू अच्छा बढ़िया गया। से मेडिटेशन कर लो सौम्या जी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो अभी Yes. बढ़िया सा अभ्यास कर लो, मेडिटेशन को अपना हथियार बनाओ। लिंकिंग मेडिटेशन करते हो, चीजों Yeah. को लिंक करके रिकॉल करने की कोशिश करते हो? Yes, Follow sir. that. Yes. लिंकिंग चार्ट्स है तो उनका पूरा इस्तेमाल करो, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर पे अपने लिंकिंग ऐप से, लेकिन उसको जरूर यूज करें। ओके, Yes. Yes, sir. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much, sir. Unacademy. Let's crack it.